Didi, please. Sanjana also has it. Great, Sanjana. Thank you so much. Ritu also has it. Great. Ishika too also has it. Thank you so much. Did others get it? Did others get it? All right, Neelam, Sarita. All right. Thank you so much, girls. So आपको कुछ नहीं करना है. What you have to do is you have to fill half the glass with water. Right? आपको उस ग्लास को आधा पानी से भरना है. ठीक है? When you do that, observe what is happening to the glass, right? ग्लास में क्या ऐसा हो रहा है जब आप उसमें पानी भरते हो. ठीक है? And then once you are done with that, fill the full glass with water. पूरे ग्लास को पानी से भरना. And then tell me what is happening. Right? When you fill the water in the glass, what is happening? And then raise your hand to answer. Sanjana and Manisha, I would encourage other students to also answer because you know what I expect. दीदी बस ऐसे ही करना है ना. हाँ, आपने पानी भर दिया. जब आप पानी भरते हो तो क्या होता है? What is happening? Yes, Rishita. क्या? Can you repeat that, Rishita? दी जो वाटर है वो इंक्रीज होता है. वाटर इंक्रीज होता है. ऑल राइट. एंड ग्लास में क्या होता है? जब वाटर का अमाउंट इंक्रीज होता है, ग्लास में क्या होता है? दी बुलबुले से हो जाते हैं जब भरते हैं पानी. वो तो आप कोई भी ड्रिंक भरोगे तो होगा. ऋतु? दी ग्लास खाली होता है फिर वो पानी से भर जाता है. ग्लास खाली होता है एंड वो पानी से भर जाता है, राइट? सो when we are putting something inside the glass, we are taking space, right? जब हम ग्लास में कुछ भर रहे हैं तो we are taking some space in that glass, right? हम पानी भर के उस ग्लास के अंदर जितना भी स्पेस है वो हम ले रहे हैं, right? This space that an object can acquire is called volume. ठीक है? एक ऑब्जेक्ट कितनी जगह ले सकता है? एक ऑब्जेक्ट कितनी जगह नहीं, एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी जगह है कुछ भी भरने की, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम. ठीक है? सो एक चीज ये समझने की है कि जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा 3D ऑब्जेक्ट्स का होता है. ठीक है? वो कभी भी 2D ऑब्जेक्ट्स का नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पेपर, राइट? मेरे हाथ में एक पेपर है एंड दिस पेपर इज 2D. Everyone agrees with that. This is 2D because it just has a length and breadth. There is no height, nothing. इसके अंदर मैं कुछ भर नहीं सकती, राइट? आई कांट फिल एनीथिंग इन दिस बिकॉज दिस इज अ 2D ऑब्जेक्ट. तो वॉल्यूम जो होता है इट्स ऑलवेज फॉर 3D ऑब्जेक्ट. जैसे ये बॉटल है, दिस इज अ 3D ऑब्जेक्ट, सो आई कैन फिल वाटर इन दिस, राइट? I can fill water in this glass because in this cup because it is a 3D object. ठीक है? सो वॉल्यूम हमेशा 3D ऑब्जेक्ट्स का होता है, 3D शेप्स का होता है. ठीक है? सो एक ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ले सकता है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम. इज इट क्लियर विद एवरीवन व्हाट इज वॉल्यूम? कैन यू गिव मी अ थम्स अप? थैंक यू रितु, थैंक यू रिशिता. ऑलराइट, थैंक यू गर्ल्स. अब आगे चलते हैं. Let's move ahead. If you want to write it, I'll give you 10 seconds. What is volume? Don't go into the technical part of it कि क्या होता है क्या होता है. बेसिक सा आइडिया है कि हम एक ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ले सकते हैं. दीदी 1 सेकेंड. हाँ संजना. All right, let me move ahead. ठीक है? अब आपको क्या करना है? So today we are going to talk about volume, right? So I want you to bring 10 2 rupee coin or 1 rupee coin if you have. If you don't have, it's okay. ठीक है? If you don't have, you can just watch me. ठीक है? If you have it, just give me a thumbs up. Thank you, Ritu. Thank you, Barsha. ठीक है, तो जिनके पास है वो कर सकते हैं. आपको
let me put myself on spotlight so that you can see it, right? So you have one coin. Can everyone see me? Yes, Yes, you have Di. one coin. What you have to do is you have to keep all the coins together, right? You have to keep all the coins together and tell me, you have to keep all the coins on top of each other, right? Once you do that, tell me what shape are you getting? What is this shape? This Yes, Natasha. this circle shape. Is this a circle? ये coin का shape circle है. No, the cylinder shape. Cylinder, right? So जब आप एक circle आप दो जैसे this coin is in the shape of circle, right? So when you keep 10 to 20 circles together, you are getting a cylinder, right? You are getting a cylinder. Now, all right, one second. Now, ये जो सिलेंडर है इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो सर्कल है, दिस सर्कल, इसका कुछ एरिया होगा एंड सारी सर्कल्स का एरिया सेम होगा, राइट? बिकॉज इट्स द सेम कॉइन, इट्स ईदर 1 रुपी कॉइन और इट्स ईदर 2 रुपी कॉइन, राइट? तो इनका एरिया सबका सेम होगा और इन सबका एरिया, हम सबका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी हाइट से, राइट? वी विल मल्टीप्लाई द एरिया ऑफ वन कॉइन with the height of the cylinder, right? And then we will get the volume. ठीक है? So tell me the area of one coin. एक coin का क्या area होता है? एक coin is in the shape of circle, उसका क्या area होता है? Yes, Ritu? The pi r into the pi r होगा. Pi r होगा कि pi r के आगे कुछ आता है? The pi r the pi r into Let me see the the chart. pi r into 2. Pi r into 2 नहीं, एरिया क्या होता है? एक सर्कल का एरिया क्या होता है? Yes, Manisha? Yes, Pari. Let Pari answer. Let Pari answer. The 2 pi r. 2 pi r circumference होता है. एरिया क्या होता है? Anyone? हमने कल ही पढ़ा था सर्कल का एरिया क्या होता है. Yes, Ritu? The pi r into 2r. Pi r square. Yes, the pi r. It's not 2r, it's pi r square. ठीक है? So the area is pi r square. Ishika 2 wrote it in the chat box as well. So it is pi r square. अब एक सर्कल के एरिया को आपको इसके पूरे हाइट से इंटू करना है इस सिलेंडर के. तो आप हाइट कुछ भी ले लो, h ले लो, ठीक है? जब आप एक सर्कल के एरिया को उसकी पूरे हाइट से इंटू करोगे आपको वॉल्यूम मिलेगा. सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम? टेल मी. If you multiply the area of one coin with the height of this cylinder, you will get the volume. What will be the volume? Yes, Varsha? The pi r square multiplied by 10. Multiply by 10. All right, आप ये इसलिए कह रहे हो because ये 10 coins है. I agree. Yes. But हमें अभी पता नहीं है कि इसकी height कितनी है. ठीक है? तो 10 की जगह आप कुछ वेरिएबल ले लो. Just take a random variable. Okay, Didi. Sanjana, I know you know the answer. Anyone else? एक सर्कल का एरिया इज पाई आर स्क्वायर. उस पाई आर स्क्वायर को आपको उसके हाइट से, सिलेंडर के हाइट से इंटू करना है. तो हाइट कोई भी वेरिएबल ले लो. जस्ट टेक अ रैंडम वेरिएबल. The 5. हाँ, क्या वर्षा? Didi 5. 5 is not a variable. 5 is a number. Variable क्या होते हैं? What are variables? Variables are letters, right? Random letters. हमने पढ़ा था algebraic expression वाले चैप्टर में कि वेरिएबल्स होते हैं, हम कोई भी
लेटर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स, वाई, एच, एल, एम, पी, ये सब वेरिएबल्स होते हैं। जेड, ठीक है। तो अगर आप इसका हाइट मानोगे z, if you consider the height of this cylinder as z, so it will be pi r square z, right? I did not understand. हाँ, so it's very easy. Area of one circle is pi r square or pi r into r. Height of the cylinder is h, हम h मान लेते हैं because usually height को हम h से denote करते हैं. So the volume of the cylinder will be pi r square h. ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में. I'll give you 30 seconds and then we will move on. Just give me a thumbs up once you have written. Di, can you repeat once? So area of one circle, let me remove myself from spotlight. So area of one circle is pi r square. One coin is pi r square. हमें कोई भी वैल्यू नहीं पता, हमें कोई नंबर नहीं पता, इसलिए हम वेरिएबल ले, ठीक है. हमें कोई भी नंबर नहीं पता, हमें नहीं पता कि इस कॉइन का रेडियस कितना है, हमें नहीं पता कि इस सिलेंडर का हाइट कितना है, तो हम कुछ भी रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं. तो एरिया ऑफ वन सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. जब हम एक सर्कल के एरिया को पूरे सिलेंडर के हाइट से इनटू करते, राइट, तो हमें मिलता है वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंडर. ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है, लेट मी टेल यू द रीजन बिहाइंड इट. एक सेकेंड. कल हमने पढ़ा था सरफेस एरिया के बारे में. कोई मुझे बताएगा कि सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या है? आपने नोट्स बनाए होंगे. सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या है? किसी ने नोट डाउन नहीं किया था क्या फॉर्मूला? सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया नहीं, टोटल सरफेस एरिया. 2 pi r square. 2 पाई आर क्या? 2 पाई आर, 2 पाई आर एच, हाँ 2 पाई आर एच मल्टीप्लाई बाय आर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. हमने डिस्कस किया था, जैसे ये मेरे हाथ में एक ईयरबड का डब्बा है, ये भी एक सिलेंडर शेप में, राइट, दिस इज इन सिलेंडर शेप. हमने डिस्कस किया था कि ऊपर एक सर्कल होता है, नीचे एक सर्कल होता है, दोनों सर्कल के एरिया को हम ऐड कर देते हैं, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर. फिर हम देखते हैं कि इस सिलेंडर की हाइट है प्लस इस सिलेंडर का कुछ पेरीमीटर है, सर्कमफ्रेंस है, राइट. तो एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, उस सर्कमफ्रेंस को हमने इसकी हाइट से इंटू कर दिया, ठीक है. सो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखने की है कि ये जो सिलेंडर है, इसका जो बाहर का सरफेस होता है वो हमें एरिया देता है. इस सिलेंडर के अंदर क्या चीज आ सकती है, दैट गिव्स अस द वॉल्यूम. ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड वॉल्यूम. एरिया विल गिव द सरफेस कितना है इसका, ठीक है. वॉल्यूम विल गिव इसके अंदर क्या चीजें आ सकती है, कितना सामान इसके अंदर आ सकता है. ठीक है, आर यू क्लियर विद द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड वॉल्यूम? कैन यू गिव मी अ थम्स अप? थैंक यू रिशिता, थैंक यू नाज़मीन, थैंक यू वर्षा, थैंक यू मनीषा. ठीक है, अगर किसी को क्लियर नहीं है तो मुझसे क्लियर कर लेना इसको कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बीच में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, अब सिर्फ सरफेस एरिया में हम बाहर का कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग बाहर का एरिया, दैट्स व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग 2 पाई आर एच एंड नॉट जस्ट एच. ठीक है, क्योंकि हम पूरा
ये पूरा सरफेस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग दिस होल सरफेस। वॉल्यूम में हम सिर्फ अंदर का देख रहे हैं, वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग अंदर का, इसलिए वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग इट विद h एंड नॉट 2 पाई आर एच। समझ रहे हो? पाई आर स्क्वायर को, एक सर्कल के एरिया को आई एम मल्टीप्लाइंग विद जस्ट h एंड नॉट 2 पाई आर एच। ठीक है, तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि एरिया और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होता है। ऑलराइट, अब हम आगे चलते हैं, लेट्स मूव अहेड। So now Ishika to Nisha, can you read what is on the screen? Nisha can't hear me, I think. Barsha, you can go ahead. Okay, Didi. Now I will divide you into two breakout rooms and you have to find the volume of cuboid and cube. Group leader for group 1 will be Manisha. Group leader for group 2 will be Sanjana. You will have 15 minutes in the breakout room. Thank you so much, Barsha. ठीक है, आपको बहुत सिंपल सा काम करना है। अब जैसे मैंने जिस तरीके से मैंने सिलेंडर का एरिया निकाला, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला, उसी तरीके से आपको क्यूबॉइड और क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, क्या आइडिया आपको लगता है आप क्या चीज यूज करोगे? जैसे यहाँ पे मैंने एक सर्कल का एरिया निकाल के उसको हाइट से मल्टीप्लाई किया था, क्यूबॉइड में आप क्या करोगे? व्हाट डू यू सजेस्ट? क्यूबॉइड में, जैसे सिलेंडर में मैंने एक, हाँ नाज़मी वो है दीदी स्क्वायर का क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्यूबॉइड के सारे साइड्स सारे फेसेस कौन से शेप के होते हैं? मनीषा, आई नो यू नो द आंसर, एनीवन एल्स? क्यूबॉइड के सारे फेसेस कौन से शेप के होते हैं? दी रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल, राइट? सो एक रेक्टेंगल, ठीक है, एक रेक्टेंगल का एरिया आप निकालोगे एंड यू विल सी कि अगर हम उसको, हम ऐसे 10 रेक्टेंगल और ऊपर रखते हैं या फिर हम 20 रेक्टेंगल और ऊपर रखते हैं तो क्या वॉल्यूम होगा, राइट? एंड सिमिलरली यू विल डू फॉर अ क्यूब, एंड क्यूब का एक पार्ट इज अ स्क्वायर। ठीक है, कैन यू गिव मी अ थम्स अप? कैन यू डू इट? कैन यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड? ठीक है, मनीषा एंड संजना विल हेल्प यू आउट। मनीषा एंड संजना, डोंट टेल देम द आंसर, हेल्प देम टू फाइंड द आंसर। ठीक है, क्योंकि आप दोनों को ऑलरेडी मैंने कल समझा दिया है, सो आज उन लोगों को खुद फाइंड करने में हेल्प करना। ठीक है, सो आई विल मेक द ब्रेकआउट रूम्स। वन सेकंड। ठीक है, आई विल मेक इट फॉर 10 minutes because it will not take you a lot of time. ठीक है, all right, your time starts now. You can join the breakout rooms. दीदी क्या हुआ? दीदी जैसे मैंने उसमें दबाया तो दीदी पता नहीं क्या आ गया, मैसेज आ गया उसमें, वो हट गया ब्रेकआउट रूम पे जैसे कर। अब वापस ज्वाइन कर लो, आपको, आप बैक करोगे तो आपको दिखाएगा ज्वाइन ब्रेकआउट रूम कर। ओके
टिया, कैन यू हियर मी? Yes, दी. टिया, मैंने आपको एक ब्रेकआउट रूम में भेजा है, आप वो ब्रेकआउट रूम ज्वाइन कर लो. आपके पास ऐसे एक ऑप्शन होगा वहां पे ब्रेकआउट रूम ज्वाइन करने का. हम लोग अभी ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं. आप बैक करोगे ना तो आपके पास ऑप्शन आएगा ब्रेकआउट रूम ज्वाइन करने. पलक, सानिया, कैन यू प्लीज ज्वाइन द ब्रेकआउट रूम्स? एरिया पूछा है, एरिया नहीं पता. ये तो किसी का याद नहीं. L/B होता है शायद. रुको, मैंने कल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी है. स्क्रीन वाइट हो गई. डोंट टेल देम द आंसर, संजना. हाँ, क्या बता रहे थे? संजना ने क्या पूछा? व्हाट डिड संजना आस्क? दीदी, I asked the formula फॉर व्हाट? फॉर रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का एरिया किसको पता है? बहुत छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है. मुझे लगता है संजना की बहन को भी पता होगा शायद. दी कैन आई ट्राई? हाँ, ट्राई करो. दी लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ इनटू ब्रेथ से बेटर होगा ये समझना, बड़ा वाला साइड इनटू छोटा वाला साइड. ठीक है, लेंथ ब्रेथ तो कंफ्यूजिंग है. बड़ा वाला साइड इनटू छोटा वाला साइड. ठीक है. अब इस लेंथ ब्रेथ, एक रेक्टेंगल का एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ. तो अगर मैं 10 या फिर 20 शीट रखती हूँ, सेम शीट्स, तो क्या वॉल्यूम हो जाएगा? व्हाट विल बी द वॉल्यूम? दी लेंथ इनटू ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय. Ritu, please mute yourself. Ritu, please mute yourself. Thank you. हाँ, वर्षा, क्या बोला आपने? लेंथ इनटू ब्रेथ. फिर आगे क्या बोला? प्लस क्यों? हमने आज तक प्लस किया है क्या वॉल्यूम में? दी मल्टीप्लाई y और मल्टीप्लाई h. आप हाइट हमेशा h रखो, अदरवाइज कंफ्यूजन होगी, बिकॉज हाइट h से शुरू होता है ना, तो हाइट हमेशा h रखो. ठीक है. तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम? व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड? just multiply both of these. L into B and what is this? L into और क्या आएगा दीदी? Height. हाँ रिशिता, you raised your hand. Yes, दी, मैं भी वही बोलने वाली थी. लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. वेरी सिंपल. ठीक है. वेरी क्यूबॉइड का वॉल्यूम विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. अब इसी तरीके से आपको क्यूब का भी निकालना है. क्यूब में आपके पास एक स्क्वायर है. दिस इज द स्क्वायर. ऑल साइड्स आर सेम. ठीक है. ऑल साइड्स आर ईदर L और B, जो भी आपको लेना है इसका साइड. ठीक है. एंड आपको हाँ वर्षा बोलो. दी लेंथ इन दी 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे. लेंथ इनटू ब्रेथ, फिर लेंथ इनटू ब्रेथ, फिर LB मल्टीप्लाई बाय. तो L भी है ही नहीं, सेम ही साइड है. लेंथ और ब्रेथ अलग थोड़ी है, सेम ही है. साइड इनटू साइड. साइड इनटू साइड, राइट. साइड इनटू साइड. और फिर इसका हाइट क्या होगा? व्हाट विल बी द हाइट? अगर मैं इसी तरीके से 10-15 शीट्स और रख देती हूँ तो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ अ क्यूब? क्यूब में ये चीज ध्यान रखनी है, क्यूब में सारे साइड सेम होते हैं. तो व्हाट विल बी द हाइट? दीदी side into side into side. What do others say? हाँ. This side into side and height. हाइट क्या होती है? क्यूब में हाइट क्या होती है? क्यूब का हर एक फेस स्क्वायर शेप का होता है, तो हाइट क्या होती है? Where is my cube? Let me bring a cube. This is my cube, and if this is my cube, this is my cube. इसमें this is my length, this is my breadth, both of them are same, and it's same to my height as well. ठीक है. आप क्यूब देख सकते हो. क्यूब के अगर आप एक क्यूब को स्केल से मेजर करोगे तो इसके लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब सेम होती है, राइट. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्यूब एंड अ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ, हाइट अलग होती है. क्यूब में लेंथ, ब्रेथ, हाइट सेम होती है. तो अगर लेंथ, ब्रेथ, हाइट सेम होगी, सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम?
Sanjana, I know you know the answer. Anyone else? सोचो, एक स्क्वायर के एरिया से आपको पूरा हाइट इनटू करना है, बट थिंक व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्यूब. क्यूब में हाइट होती क्या? ठीक है, आई मीट यू आउटसाइड वंस यू गाइस डिसाइड ऑन योरसेल्फ कि क्या होता है. ठीक है, मैं दूसरा रूम ज्वाइन कर रही हूँ. ओके दीदी. हाँ जी, क्या डिस्कस किया अब तक आपने? कैन यू गाइस हियर मी? यस. हाँ जी. मनीषा के अलावा बाकी कोई मुझे बताओ, व्हाट डिड यू गाइस डिस्कस सो फार? एनीवन? तो आपको वॉल्यूम निकालना था क्यूब और क्यूबॉइड का. कुछ निकाला, कुछ सोचा? क्या सोचा? हाँ नाजमीन, यू वांट टू से समथिंग? There is this rectangle. एक क्यूबॉइड किससे बनता है? रेक्टेंगल से, राइट? So there is this rectangle. What is the area of this rectangle? What is the area of the rectangle? Multiply by breadth. Length multiply by breadth. और easy words में बड़ा साइड इंटू छोटा साइड. Size. Yes थी. वेरी सिंपल. ज्यादा ये भी सोचना कि साइड स्क्वायर का साइड इंटू साइड होता है, इसका ही होता है. एक रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं? उसके बड़े साइड को हम छोटे साइड से इंटू कर देते हैं. ठीक है, तो इसका जो एक रेक्टेंगल का एरिया अगर लेंथ इंटू ब्रेथ है, और अगर मैं इसी तरीके से 10-15 शीट्स और रख देती हूँ, तो इट विल बिकम अ क्यूब, राइट? अगर मैं इस तरीके से, जैसे यहाँ पे एक कॉइन मैंने लिया था, I took one coin and then I kept 10 to 20 coins together and I got a cylinder. Similarly, if एक rectangle के ऊपर मैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rectangle रख देती हूँ, तो I will get a bigger cube, right? I'll get a cuboid. So एक rectangle का area is length into breadth, और उसको अगर मैं cuboid की height से into करती हूँ, so I'll get the volume. That's the whole idea, right? पहले भी हमने यही किया था. पहले हमने एक सर्कल के एरिया से सिलेंडर का हाइट इंटू कर दिया था. वैसे ही आपको एक रेक्टेंगल के एरिया से क्यूबॉइड का हाइट इंटू करना. तो व्हाट विल यू गेट? The length into breadth into height. वेरी सिंपल, राइट? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड. अब आपके पास एक क्यूबॉइड है, अब आपके पास एक क्यूब है. क्यूब का एक साइड कौन से, एक फेस कौन से शेप का होता है? Square. स्क्वायर, राइट? स्क्वायर की स्पेशलिटी क्या होती है? This side. साइड क्या? The equal sides. All the sides are equal. There is no length, breadth, height. Like all sides are equal. ठीक है, तो इसका एरिया क्या होता है एक स्क्वायर का? The 2 into length plus breadth. That is perimeter of rectangle. Oh, sorry. This side multiply by height. एक स्क्वायर का एरिया पूछा है मैंने. That's all. सिंपल. मुझे पता है कि आपकी छोटी छोटी बहनें भी बता देंगी, इतना इजी होता है स्क्वायर का एरिया. दैट इज साइड इनटू साइड. ठीक है, क्योंकि इसमें कोई बड़ा साइड छोटा साइड नहीं होता, तो एक साइड को दूसरे साइड से इंटू कर रहे हैं. चलो बाहर आ जाओ. आई विल एक्सप्लेन यू इट इन द मेन सेशन. Let's wait everyone to join. I could see Nazmeen, Neelam, Sanya, Manisha, Sanjana, Barsha, Ria, Natasha. Let's wait for 10 to 20 more seconds and then let's see what did group 1 come with, if group 1 came with the answers.
ठीक है. So anyone from group 1 would like to come off mute and tell me कि क्या क्या वॉल्यूम मिला उनको. हाँ रितु. the cube की वॉल्यूम मिली है दी साइड इनटू साइड दी. साइड इनटू साइड. यस दी. कैसे मिला? एक्सप्लेन करो. दी क्योंकि दी क्यूब में दीदी सारी साइड दी इक्वल होती है. तो दी फिर से दी सारी साइड्स इक्वल होंगी. दी लेंथ दी और उसका फॉर्मूला होता है दी साइड इनटू साइड. किसका फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड? दी क्यूब का. नहीं, एक स्क्वायर का एरिया होता है साइड. हाँ दी एक स्क्वायर का दी साइड इनटू साइड. फिर दी समझाना होता है कि दी साइड इनटू साइड ही होगा. साइड इनटू साइड ही होगा. ठीक है. और क्यूबॉइड का क्या एरिया वॉल्यूम मिला? दी कैन आई? हाँ वर्षा. दीदी L into B into H. L into B into H कैसे मिला वर्षा? दीदी क्योंकि जो लेंथ और ब्रेथ होती है दीदी उसकी फिर जो सेम होती है फिर दी हमने उसे फिर सॉरी दीदी लेंथ और दी हमने ब्रेथ को दीदी मल्टीप्लाई किया. तो इसका लेंथ और ब्रेथ को क्यों मल्टीप्लाई किया? Why did we multiply length and breadth? क्योंकि वो दो एक यहाँ से भी होता है ऐसे दीदी दो बार होता है ना इसलिए. Opposite. आप ये सोचो क्यूबॉइड का सबसे रेनुमा why are you sharing your screen? Alright. क्यूबॉइड का सबसे बेसिक पार्ट होता है एक रेक्टेंगल. एक रेक्टेंगल में होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं. दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. इसलिए हमने लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है. और फिर हमने h से इनटू क्यों किया? Who will tell me? दीदी रिशिता बहुत देर से हाथ खड़ा कर रही है. रिशिता आप बता दो. अच्छा कर रही है क्या? I didn't see. हाँ रिशिता बोलो. हमने h से क्यों इनटू किया? दी बिकॉज हमें उसकी वॉल्यूम पता करनी है ना दी. दैट्स व्हाई. वॉल्यूम. हाँ संजना. संजना ठीक है. ग्रेट. सो आई कुड सी कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत क्यूबॉइड तक तो आप लोग आ गए थे. हमारा बेसिक आइडिया यही है कि कोई भी सॉलिड शेप है, सिलेंडर हो, क्यूबॉइड हो, क्यूब हो. अभी आपके सिलेबस में ये 3 ही है. आगे जाके और शेप्स आएंगे. अभी आपके सिलेबस में 3 शेप्स है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर. ठीक है. इन तीनों का सबसे बेसिक यूनिट अलग अलग होता है. क्यूबॉइड का सबसे बेसिक शेप होता है रेक्टेंगल. क्यूब का सबसे बेसिक शेप होता है स्क्वायर. और सिलेंडर का सबसे बेसिक शेप होता है सर्कल. राइट. सो अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है तो सबसे पहले हम सबसे बेसिक शेप का एरिया निकालते हैं. अब जैसे आप सबने, मुझे पता है कि क्यूबॉइड का सबने निकाल दिया, तो लेट्स टॉक अबाउट क्यूब. ठीक है. क्यूब का सबसे बेसिक शेप होता है स्क्वायर. इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं. एक स्क्वायर का एरिया होता है, आपने मुझे बताया था, साइड इनटू साइड. ठीक है. और लेंथ इनटू लेंथ. अगर आप इसको लेंथ बोलना चाहते हो लेंथ बोलो, अगर आप इसको ब्रेथ बोलना चाहते हो ब्रेथ बोलो, डजंट मैटर. ठीक है. सो साइड इनटू साइड होता है. अब हमें पता है कि जब मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी तरीके से इस क्यूब के ऊपर स्क्वायर्स रखती जाओ 10-15 स्क्वायर्स रख दूं. ठीक है. तो इसका जो हाइट बनेगा, जो हाइट इसका बनेगा वो इसके साइड के इक्वल होगा. ठीक है. इस साइड के इक्वल होगा बिकॉज क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ नहीं होता, सेम होता है सब. राइट. दैट्स व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग साइड इनटू साइड टू फाइंड द वॉल्यूम. ठीक है. क्योंकि आप खुद करके देखना. आप 20 शीट्स ले लेना. गेट 20 शीट्स ऑफ द शेप ऑफ अ स्क्वायर. ठीक है. उनको एक दूसरे के ऊपर रखना एंड मेजर करके देखना. पहले ब्रेथ मेजर करना, पहले ये वाला साइड मेजर करना, फिर ये वाला साइड मेजर करना और फिर हाइट मेजर करना. एंड यू विल सी कि जो हाइट आ रहा है वो इस साइड के इक्वल है. Priya, why are you sharing your screen? Oh my god, wonderful, great. ठीक है. तो स्क्वायर का जो हाइट बनेगा, जब क्यूब में 10-15 शीट्स इस तरीके से रखूंगी, आई विल गेट अ क्यूब एंड दैट हाइट विल बी इक्वल टू द साइड ऑफ दिस स्क्वायर. दैट्स व्हाई द वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड इनटू साइड.
अब इसमें डू यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस और वरीज कि ये हुआ कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं। अगर थोड़ा सा भी डाउट है जस्ट क्लियर इट राइट नाउ, otherwise we can end and we can, I'll give you the homework. Just give me a thumbs up. Thank you Rishita, thank you Manisha, thank you Ritu. दीदी आप किसको शॉर्ट आउट देना चाहते हो अभी?